Hello students, welcome to the class 8. I'm your social study teacher, and in this lecture we are going to attempt our first class, and now we are going to study our social science. As you can see, here is the first book, part 1 of your social studies. It is the history and civics. Okay, let's see the contents. As you can see, the first part of your content in the book is history, and there are 8 chapters in the history, and there are 11 chapters in the civics part. Okay, so let's start your first chapter, Rise of Modern Europe. Before studying the rise of modern Europe, we must need to understand how many ages are there in the study of history. There are 3 ages. First one is ancient age, second one is medieval age, and third one is modern age. Okay, so this modern age consists the political, social, economic, religious, and cultural structure along with the modern activity of different countries of world. Means ancient age is the part of the ancient time of the history, medieval is the middle age of the history, but modern age is the consist of the different activities of the world country. Okay, so let's see the characteristics of modern age. Characteristics of modern age. First one, reasoning and rationalism. What is the reasoning and rationalism? In this era, individual used to believe that any fact only when he used to appropriate reason or the argument for the fact. The lead to development of science in Europe. Okay, modern age has the different kinds of the activity. Due to that, it is called modern age, as well as it has the different characteristics. First of all, reasoning and rationalism. Okay, second one is humanism. Humanism means belonging to human. When in the modern age, humanism is very important topic, important comfort. Okay, means the all the things which are used, which are developed in the modern age belongs to the humanity. For to develop the humanity and for the comfort of human being, everything is developed. Okay, not destroyed to the human culture, human people and other things. These all the taken care while developing anything, so that is called a humanism. Humanism is also one of the part of the characteristics of the modern age. New research in the modern age, and many kinds of the scientific research, social research and technical research are going on. But new research means to find out new thing of developing something or the researching something. This is called the new research. So their first characteristic is reasoning and rationalism, second one is humanism, third one is new research. Evolution of modern period did not start at the same time. It's fact, evolution takes time. Okay, it doesn't start suddenly. Evolution comes with the time by time. To know about the history of modern period, it is necessary to learn about the different source of
history. Okay, to know about history we must learn to the different source of history. Without source history is not possible to learn. Okay, so that's why we need to first the sources of history. Okay, we need to know, we need to learn about the sources of history. Can you tell us with the help of the which source we can know about the modern period? Definitely cultural, building, okay, cultural activities, buildings, monuments, these all are the source of understanding, or the novels and other kind of the knowledgeable facts like that, publishings, books, novels, these all are the source of understanding the modern history. History of modern source and its product are not in plenty, but get them is easy. Means there are no high amount of the source, but it is the very sequential and very proper order to understand, to study about the modern age. In this age, books are not only the printed or written, but some books are printed. They are different types of literature like novels, biographies, travelogue, etc. Means the most essential thing of the modern age is the book. This book tells about the history, culture, customs and other things about the modern age. That's why books are very essential source of modern history. And also there are some people who are with the experience the struggle of independence or have taken part in the revolution. They give us more verbal information about history. In the history we know about that time by time many kind of the revolution took places. Okay, so the people who know about this revolution, who are the part of this revolution, can tell us verbally, okay, about the history. As you can see, here is the route map, history of modern as and its source. How we can understand the history, how we can study about the history, modern history, and what are the its sources. Okay, you can understand with this table. Okay students, okay, let's see what are the written history, verbal history, modern communication, modern architecture. These are the source of study about the history. Written history means books and different kind of the other sources. These all are the sources of history. Verbal history experienced by people, folk stories, eyewitness, etc. These all are the source of history. Modern communication like that television, film, photography, audio, video, etc. These are all the sources of modern history. And next one is modern architecture. Architecture belongs to the buildings, roads and other kind of the architectures, museum. These all tells about the history. So these are the modern architecture of the history. I think you have the brief information. Okay, you have the brief information about the how to study history and what are the sources and what is the characteristics of modern age. Okay, very well. Let's go to the background of the modern Europe. Let's see the background. As you can see the background, at the end of the 15th century, life of European society has impact of priest and knight. Who is the priest? Priest, you know, who belongs to the church as churches.
So the Europe was a Christian country, so there were priests in the churches, and the knights means to the kings and the warriors. These all controls to the administration or the country or the rules. So that's why these were the supremacism of the Christian religion. Okay. Leaders, Pope was the considered the representative of the God in the modern age. In the previous modern age, people think that the Pope and other priests were the representative of the God, and they gives the message of God as per their announcement. Okay. So these things make the background of the Europe. Faith in intelligence means the power of thinking logically and believing it to undergo deeper fact and make decision by oneself whether it is right or wrong. It means faith intelligence means you must people have the understanding about to know the fact, what is the right and what is the wrong, which is the true and which one is the false. So this is called the faith in intelligence. Intelligence means बुद्धि पे विश्वास करना. Renaissance of Europe. Renaissance of Europe. Pope, knight, rule, message of God, these were the background of the European countries. But after that, they started believing in the fact and knowledge. So due to belief on fact and knowledge, the Europe renounced. Let's see the first what happened in the Renaissance of Europe. First one is ideological revolution. In 15th century, Renaissance of Europe correlates with the ideal revolution, ancient epic in the language. Like Greek, Latin, etc. have been converted into local language, and studies of those started freshly due to discovery of printing machine. Availability of books in large number were easy and at a lower cost in that time. Therefore, propaganda of knowledge was fast. Because of knowledge of ancient ideas and modern views, the ideal revolution got a new direction as the ancient epic belief in intelligence, importance of the martialism in common life, etc., started to find the roots in Europe. So, it is very as you have read here that the propaganda of knowledge was fast. Propaganda, someone is saying that this is right, someone is saying that is right, and they are mixing their own knowledge, their own mind on the fact. Different cultures of literature, art, fine art, sculpture, science, etc. influence the character of views. Artists have mostly depicted human emotions and natural beauties of nature in their art pieces. Different culture of literature, art, fine art, and sculpture, science, etc. influence the change of view. Means these things influence the view of people and their thinking.
Artists have mostly depicted human and emotions and natural beauties of nature in their art pieces. It means artists and other peoples started to influence the people. Scientists like Copernicus and Galileo established new scientific explanation about universe by the breaking the olden beliefs. For example, Earth revolves around the sun. Okay, the ancient people or the old modern age people believes that the sun revolves around the sun. Okay, it means पहले ज़माने के लोग सोचते थे कि सूर्य जो है वो धरती की परिक्रमा करता है, लेकिन गैलीलियो ने उन्हें एक नया थ्योरी दिया, एक नया सिद्धांत दिया कि सूर्य नहीं, धरती सूर्य की परिक्रमा करती है. दिस थॉट बॉट एडवर्स इफेक्ट इन रिलीजियस फेथ एंड गेव राइज टू मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन. और यह सिद्धांत जो हमारे धार्मिक विश्वास थे, धार्मिक जो अंधविश्वास थे, उन पर संशोधन करने के लिए, सुधार करने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया. मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन. अब यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजियस में धार्मिक उत्थान या फिर धार्मिक पुनर्जागरण कह लें, या फिर रिफॉर्मेशन का होता है परिवर्तन, या फिर कहना चाहिए सुधार. तो उसमें नया सुधार आने लगा, नए नए सिद्धांत आने लगे, हमारे जो रिलीजियस फैथ थे वो बदलने लगे. रोमन कैथोलिक चर्च हैज़ ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन द मेडिवल यूरोप. क्रिश्चियंस होली बुक Bible was written in Latin. Common people could not understand this language. Taking advantage of the ignorance of the people, some Christian religious leaders encouraged malpractice. They also exploited people in the name of religion. जो बाइबल है यूरोप का, जो मेडिवल एज में लिखा गया था, मेडिवल एज की बात है, जब जो बाइबल था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, लैटिन इंग्लिश में था, जिसके कारण से उसे समझ पाना आसान नहीं था. और इस कारण से जो कुछ लोग जो उसको समझते थे, उन्होंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, धर्म के नाम पर उनका धार्मिक शोषण करने लगे. दे आल्सो एक्सप्लॉइटेड पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों का शोषण भी शुरू कर दिया. तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती गई, और फिर उसके बाद उस धर्म के नाम पर जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें से एक प्रकार का मूवमेंट का कहने का मतलब है आंदोलन शुरू हो गया उसमें सुधार के लिए. करप्शन वॉज लीडिंग इन दिस रिलीजियस institutions, so revolution started in Europe against corruption to bring reform in religion. ठीक है, जो धर्म के नाम पर जो करप्शन होता था, अत्याचार होता था, उसके सुधार के लिए, है ना, यूरोप में आंदोलन शुरू हो गया धार्मिक सुधार के लिए. चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज. Thinkers of time raised a voice against corruption prevailing in the religious institutions. Then, Bible was translated in local language so that local people could also read it. क्या होता था कि बाइबल के नाम पर जो धार्मिक शोषण चलता था वो लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो लैटिन भाषा में हुआ करती थी और जो कि थोड़ा टफ होता था. तो वहाँ पे जो विचारक हुए, है ना, विद्वान हुए, उन्होंने क्या किया कि जो बाइबल था उसे उनके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना
शुरू किया, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो सिर्फ और प्रीस्ट या फिर पोप जो होते हैं वो उन्हें ट्रांसलेट करके ना बताएं, लोकल लोग भी उसे पढ़कर समझ सकें और उसके बारे में जान सकें। जर्मन रिलीजियस लीडर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड गेव हिज ओपिनियन। और इसी बीच में जो जर्मन रिलीजियस लीडर था जिनका नाम था मार्टिन लूथर, उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, प्रोटेस्ट किया और इन इंस्टीट्यूशन में अपना ओपिनियन रखा। इन दैट ही टोल्ड द पीपल you people should read the Bible and understand the elements of religion and not believe in religious leaders। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक कोटेशन दिया, यू पीपल, जनता से बोल रहे हैं वो, कि आप लोगों को बाइबल पढ़ना चाहिए और उसके बाइबल के सारी चीज़ों को समझना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है आप बाइबल पे विश्वास करो, ना कि लीडर्स पे, रिलीजियस लीडर पे जो होते हैं उन पर विश्वास करो। आप सीधे बाइबल को ही पढ़ो और आपको जो भी पढ़ना है, वो जो भी जानना है आप जानो। आपको किसी और दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार के रिलीजियस लीडर जैसे पंडित वगैरह होते हैं, पोप वगैरह होते हैं, मुल्ला मौलवी होते हैं, उसी प्रकार से सारी चीज़ों को आपको सीधे अगर पढ़ना है तो आप सीधे बुक को ही पढ़ लो, है ना। आपको उनकी बात, उनको जो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। वो जो कहते हैं वही उसे सच मान लिया जाता है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ही चैलेंज द क्रिश्चियन लीडर पोप फॉर द इंडिपेंडेंट पावर एंड आल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिलीजियस सेटलमेंट एंड द प्रिवेलिंग मैल प्रैक्टिस। उन्होंने पोप लोगों को, जो भी रिलीजियस लीडर थे, उनको चैलेंज किया, है ना, इंडिपेंडेंट पावर एंड, और उन्होंने स्वतंत्रता की शक्ति या फिर एक अलग से शक्ति के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। रिलीजियस सेटलमेंट एंड प्रिवेलिंग मैल प्रैक्टिस, उन्होंने रिलीजियस सेटलमेंट कहना चाहिए धार्मिक स्थिरता, धार्मिक स्थायित्व के लिए उन्होंने सेटलमेंट के लिए, एंड प्रिवेलिंग द मैल प्रैक्टिस, और उनके जो गलत प्रैक्टिस हो रहे थे, जो गलत रिलीजन के नाम पर जो गलत काम हो रहे थे, उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सो हिज बिलीव वर कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट्स, और उनका जो ये जो विश्वास था, इनका जो काम था, उन्होंने कहा गया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स ड्यू टू रिलीजियस रिफॉर्मेशन पोप बिकम लेस पावरफुल। और इस प्रकार से जो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, उसके कारण से जो पोप थे उनकी शक्तियाँ कम हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लीडर होते थे, रिलीजियस लीडर होते थे, वो लोगों को बताते थे कि ऐसा करना है, गॉड ने मुझे ये मैसेज दिया है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। सामाजिक जो सोशल जो एक्टिविटीज़ थे वो पोप लोग कंट्रोल करते थे, तो उनके पोप को कंट्रोल करने की जो शक्ति थी वो अब कम होने लगी। सम यूरोपियन रूलर्स आल्सो डिनाइड टू फॉलो द एम्पावरमेंट ऑफ द पोप। वन ऑफ देम वॉज द किंग हेनरी 8। कहने का मतलब है कुछ राजा महाराजा भी होने लगे जिन्होंने जो पोप का जो रूल्स था, शासन था, उनको भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ सिर्फ राजा होगा, प्रशासन होगा, वही सारी सोसाइटी को, सारे कंट्री को कंट्रोल करेगी। ये पोप वगैरह से हम लोग कंट्रोल नहीं होंगे। और ये उनमें से एक थे राजा किंग हेनरी। इन दिस वे द रिलीजियस रिफॉर्मेशन लीड टू द मॉडर्न आइडियलिज्म एंड थॉट एंड इनिशिएटेड अवेयरनेस इन यूरोप। और इस प्रकार से जो मूवमेंट हुई, जो रिवॉल्यूशन आया, चेंजेस आया, उसी ने ही यूरोप में एक प्रकार की जागरूकता लानी शुरू कर दी। ओके, तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या पहले जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, पोप लोग ही सारी चीज़ें कंट्रोल करते थे। फिर उसके बाद उसमें रिवॉल्यूशंस आने शुरू हुए, किंग मार्टिन लूथर और क्या कहते हैं लैटिन भाषा से
लोकल लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू हो गया, तो सब लोग ट्रांसलेशन से पढ़कर उसका नॉलेज लेने लगे और समझने लगे कि एक्चुअल में बाइबल में लिखा क्या है। जो पोप कहता है वही सही नहीं है, उसे लोगों को ये बिलीव होने लगा कि जो बाइबल है वो सही है। पोप अपने मन से भी कुछ भी अलग अलग चीज़ें कर देते हैं, इस कारण से वो लोग समाज का शोषण करते हैं और बहुत सारी गलत काम भी होते हैं, मेल प्रैक्टिस होती हैं। आगे देखते हैं, नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक प्रकार का सिस्टम, एक तंत्र बनाना, एक प्रकार का सिस्टम का शुरुआत होना कि इस सिस्टम के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट चलाएंगे, रूल्स बनेंगे, उस रूल्स में क्या होगा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें होने लगती हैं। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, अब ये बात हो गई 15th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन हुआ, अब वहाँ से अब 16th सेंचुरी आ जाती है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द नोबल लॉस्ट देयर पावर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द किंग ग्रीव। अब जो पोप वगैरह होते थे उन्होंने उनकी जो शक्तियाँ थी वो छीन गई और वहाँ पे शुरुआत हुई राजाओं की शक्तियाँ बढ़ने लगी। क्योंकि राजा जो होते हैं वो ऑटोक्रेट होते हैं। ऑटोक्रेट का मतलब होता है जितनी भी राज्य की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो राजा के पास होती हैं, इसलिए उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। मतलब एक तंत्र, एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को रन करता है, चलाता है, इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। और उसी के पास ही सारी राइट्स होती हैं कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी राइट्स उसी के पास होती हैं। इन अ पर्टिकुलर प्लेस a geographical area with some language, historical custom, political and economic welfare of the people gave birth in the feeling at nationalism। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिनका एक प्रकार का रहन सहन होता है, जिनका एक प्रकार का एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक प्रकार के एरिया में रहते हैं, वो अपने एरिया के प्रति उनका जो लगाव है, उनके प्रति जो उनका सम्मान है वो बढ़ने लगता है ना। तो उससे एक प्रकार का क्या बन जाता है, देश बन जाता है, और एक राष्ट्र बन जाता है, देश बन जाता है। और उसी के प्रति जो उनका जो बिलीव है, उनका जो रिस्पेक्ट है, उसी से ही नेशनलिज्म पैदा होती है। एंड ग्रेजुअली ऑल द पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द किंग एंड ही बिकम सेंट्रलाइज द मोस्ट डोमिनेंट। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास चली गई, राजा लोगों के पास चली गई, और वो सारी डोमिनेट करने लगे। मतलब उन्हीं के थ्रू ही सारा जो डोमिनेट होता है, कहने का मतलब जो सारा राज्य होता है, प्रशासन होता है, वो चलता है, वही राजा ही सारे प्रदेश का कर्ता धर्ता होता है। फॉर दिस रीज़न इम्पीरियलिज्म इवॉल्व इन यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा। और इसी कारण से ही यूरोप में अलग अलग प्रकार के राजाओं और उसके राज्य का उदय हुआ। जैसे इंग्लैंड अलग अलग देश बन गया, फ्रांस अलग देश बन गया, स्पेन अलग देश बन गया। तो इस प्रकार से जो नेशनलिज्म जो आई, उसके कारण से फिर से अलग अलग देश बनना शुरू हुए। नेशनल स्टेट केम टू एंटिटी। The evolution of this national state has an importance in modern era। और आज के आधुनिक समय में इन्हीं नेशनलिज्म का ही महत्व है। नेशनल स्टेट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न एरा। और आधुनिक युग में इसी नेशनल स्टेट कहने का मतलब है जो एक कल्चरल, एक लैंग्वेज और एक जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, डेमोग्राफिक में रहते हैं, उसके कारण से नेशनलिज्म का क्या हुआ, उदय हुआ, राइज हुआ। अब जब यूरोप जो है अलग अलग कई कंट्रियों में बढ़ गई, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन, लैंग्वेज और कल्चर के कारण से, जैसे स्पेन और इंग्लैंड, फ्रांस, उसके बाद क्या हुआ, अब ट्रेड शुरू हुआ। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अब व्यापार शुरू होने लगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग व्यापार करने लगे, एक राज्य से एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या करने लगे, यहाँ ट्रेडिंग करने लगे। तो इस प्रकार से उस व्यापार में अब हम लोग देखते हैं कि एशिया
और यूरोप के बीच में क्या क्या ट्रेडिंग हुई, कैसे शुरू हुआ। विद द राइज ऑफ द न्यू मॉडर्न एरा, एज ऑफ द इन्वेंशन एंड वॉयज स्टार्टेड, नई नई आविष्कार, नए आधुनिक युग की शुरुआत और नए जल मार्ग के कारण, वॉयजेस मतलब होता है जल यात्रा, तो जो सीप नए आविष्कार होने लगे उसमें से सीप, जो सीप थे वो हुआ, तो सीप के थ्रू वो लोग क्या करने लगे, जल यात्रा करने लगे। जल यात्रा से के कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने लगे, जब दूसरे स्थान वो मूवमेंट करने लगे। इसके कारण से वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजते थे, दूसरे देश से सामान अपने देश में खरीद कर लाते थे। इस प्रकार से उनका ट्रेड शुरू हो गया। ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूरोप कंट्रीज एंड इंडिया वर ओल्ड। हमारा जो कंट्री है इंडिया और यूरोप, इनके बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। ट्रेड वॉज डन थ्रू लैंड वेज एंड वाटर वेज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार है वो दोनों ही माध्यमों से होता है, ज़मीन से भी होता है और जल से भी होता है। कहने का मतलब है जल मार्ग से भी सामान यहाँ से वहाँ जाता है और ज़मीन से भी यहाँ से वहाँ सामान आयात निर्यात करते हैं। फर्स्ट रूट, अब इसमें देखते हैं इसमें फर्स्ट रूट क्या है। बे ऑफ फ्रांस वॉज द कनेक्टेड थ्रू द सी रूट फॉर दिस ट्रेड वॉज द बीइंग विथ इराक, टर्की, विंस एंड जिनेवा, इटली। कहने का मतलब है फर्स्ट रूट जो है वो किससे कनेक्टेड है, हमारा इंडिया से सी रूट, पहला जो हमारा है वो समुद्री मार्ग है। फॉर दिस इज ट्रेड वॉज बीइंग विद द इराक, वो कहाँ से होते हुए जाता है, इराक से टर्की, टर्की से लेकर फ्रांस, ऐसे मतलब सारे देश एशिया से यूरोप में टच करते हुए जाता है। सेकेंड रूट, अ लैंड वे वॉज बिटवीन सेंट्रल एशिया टू यूरोप थ्रू इजिप्ट। अब हमारा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया जिसे हम लोग कहते हैं, कहना चाहिए जो हमारा इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से होते हुए जो है वो यूरोप की ओर जाता है। ये इसमें हो जाता है, ये लैंड के थ्रू होता है, मतलब है ज़मीन के रास्ते से जाते हैं। और यही फिर हमारे देश का जो भी सामान है यूरोप तक पहुंचता है, यूरोप का जो भी सामान है वो हमारे कंट्री तक आता है। In this way, Indians things were distributed in all over the Europe through the Venice and Geneva, which were the main trade centers. मॉडर्न एज में क्या है कि जिनेवा, जिसे इटली कहते हैं अभी, है ना, और विंसी जो थी वो क्या है, मुख्य व्यापार केंद्र है, जिसके कारण से इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सामान है वो पूरे यूरोप में यहीं से फैलता है, वो पूरे यूरोप में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आफ्टर वह इटली मेड रिलेशन विथ इंडियन ट्रेड एंड लेफ्ट हिज पार्टनरशिप विथ यूरोपियन इन 1453, इट टुक द चार्ज टू टर्की। उसके बाद क्या होता है कि इटली जो है वो भारतीय व्यापार से एक संबंध स्थापित करता है, एक पार्टनरशिप स्थापित करता है यूरोप के साथ। यूरोप और भारत के बीच में जो भी सामान का आयात निर्यात है वो बीच में आ जाता है इटली, है ना। और फिर 1453 में इट टुक द चार्ज ऑफ टर्की, और वो चार्ज किसका लेता है, टर्की का। टर्की जो बीच में मिडिल का जो काम करता था उसको अब क्या कर लिया, टर्की। इन्वेंशन ऑफ न्यू रूट, अब इससे क्या होने लगा कि अब नए नए रास्ते खुलने लगे। पुराने ज़माने में क्या थे कि दो ही रूट थे जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री व्यापारियों के थ्रू होकर जाती थी। अब उसमें क्या करने लगे कि अब और भी कई प्रकार के रूट का इन्वेंशन होने लगा।
इस्तांबुल वर द मेन ट्रेड रूट ऑफ इंडिया एंड यूरोप। इस्तांबुल कहाँ है? अभी वो है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इस्तांबुल वर द मेन ट्रेड रूट ऑफ इंडिया एंड यूरोप। यूरोपियन ट्रेड्स हैड टू रीच एशिया थ्रू दिस रूट। अब इसी से अफ़गान से फिर ईरान से फिर अलग अलग कंट्रीज से होते हुए वो क्या करते थे? यूरोप से एशिया में आते थे। बट आफ्टर टर्की रूल ओवर इस्तांबुल द लैंड रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वॉज क्लोज्ड। अब जैसे ही टर्की वहाँ पे रूल करने लगा, जब टर्की का शासन आया, टर्की ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया, उनका शासन आ गया, तो क्या हुआ कि ये रास्ता बंद कर दिया गया। देयरफॉर अरेबियन क्लॉथ, शुगर एट्सेट्रा एक्सपोर्टेड टू यूरोप। और जिसके कारण से क्या होने लगा, अब इंडिया से जो सामान जाता था, जो भी क्लॉथ्स थे, शुगर थे, गुड़ वगैरह थे, जो भी चीज़ें जाती थी यहाँ से, फल वगैरह, वो अब कहाँ से जाने लगा? अरब से। जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये सारी सामान चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगी। ओके। These materials was unloaded in Geneva, in Italy, Venice, Milan and so। अब ये जो अरब का जो भी व्यापारी माल जाता था वहाँ पे, वो कहाँ कहाँ से अनलोड होने लगा? वीन्स में, मिलान में, जेनेवा में। अब क्या होने लगे कि इंडिया की जगह वहाँ पे अरब का सामान पहुँचने लगा। एंड यूरोपियन ट्रेडर्स बॉट दीज मटेरियल्स बाय पेइंग टैक्स फ्रॉम दीज मार्केट्स एंड सोल्ड देम इन डिफरेंट मार्केट ऑफ यूरोप। अब ये क्या करने लगे? वहाँ पे जो इटली था, वीन्स था, मिलान था, ये लोग क्या करते थे? टैक्स लेते थे व्यापारियों से। जो भी माल वहाँ जाता था वो उनसे टैक्स, सामान के ऊपर में एवज में टैक्स देने लगे, और टैक्स के बाद फिर वो उन्हें यूरोप के अलग अलग मार्केट में सेल आउट करने लगे। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका वर्ल्ड मैप एंड ये इंडिया है। इंडिया से होते हुए ये ऐसे समुद्र के थ्रू पहले जाता था, ठीक है, यूरोप में। यहाँ जर्मनी देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, स्पेन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है फ्रांस देख सकते हैं आप। ये इंडिया है, अफगानिस्तान, फ्रांस, ठीक है। मीन्स उस टाइम के जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी सारी कंट्रीज़ जो है वो चेंज हो गई। इंडिया इतना बड़ा है नहीं, पहले इंडिया ऐसा था, ठीक है। अफ़गानिस्तान ऐसा था, यहाँ पे अफ़गानिस्तान था, यहाँ फ्रांस है। ये जो एरिया है, ये फिर ये जो एरिया जो जैसे ये यहाँ पे हम लोग एरिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अफ्रीका कहते हैं। और ये जो कहलाता है वो मिडिल ईस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मिडिल की जो कंट्रीज़ है, जहाँ पे भी अरब हैं, है ना, दुबई है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले, फिर बाद में एग्जिस्ट करने लगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू कि कैसे यहाँ से इंडिया से सामान कैसे जाता था, और बाय वाटर कैसे ये सी रूट के थ्रू वो कैसे जाता था, ठीक है। लेट्स सी द फर्दर। In Europe there was a great demand of these things, but traders of Europe did not want to trade with Arabian traders. जो अरेबियन जो चीज़ें हुआ करती थी उनका तो डिमांड बहुत अच्छा था मार्केट में, लेकिन जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इन चीज़ों को बेचना नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू ट्रेड विथ इंडिया डायरेक्टली। अब वो क्या करते थे कि जो अरेबियन ट्रेडर्स थे वो क्या थे? वो इंडिया से सामान लेके अरब में रखते थे, अरब से फिर उनको यूरोप में बेचते थे। तो उनके बीच में जो टैक्स देना पड़ता था उससे सामान महंगे हो जाता था, और यूरोप के लोग नहीं चाहते थे कि अरब कंट्रीज़ को उनको टैक्स देना पड़े, ठीक है, या फिर अरब कंट्री वाले उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। वो चाहते थे कि उनका जो ट्रेड है वो डायरेक्ट हो इंडिया से।
So they started to discover new routes in this trade. Many European ambitious rulers and queens helped them. अब वो क्या करने लगे कि अब जो राजा थे, जो इस प्रकार की इच्छा रखते थे कि इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड हो या फिर एशिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड हो उनका, वो क्या करने लगे, अब नए रूट की तलाश करने लगे। जो टर्की ने वहाँ पे जो अलग अलग सिटीज़ में जो व्यापारिक केंद्र बनाया था जहाँ पे उनको टैक्स लगता था, उसके कारण से वो क्या करने लगे, अब नए रास्ते की न्यू रूट की तलाश करने लगे। इन्वेंशन ऑफ कंपास हेल्पेड द डिस्कवर टू द वोएजेस। कहने का मतलब है उसी बीच में कंपास जैसे चीज़ का आविष्कार हुआ, जिसके कारण से हम लोग जो डायरेक्शंस है वो फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्शंस के थ्रू ही वहाँ से वोएज जो है वो पॉसिबल हो सका। वोएज का मतलब होता है जल यात्रा। अगर मुझे पानी में कहीं भी जाना है तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करने लगे, कंपास यूज़ करने लगे। इन सर्च ऑफ इंडियन स्पेनिश नेविगेटर कोलंबस स्टार्टेड। अब जो वहाँ का जो जल यात्री थे या फिर जो भी थे, उसमें से एक था कोलंबस। कोलंबस ने स्पेनिश नेविगेटर, जो स्पेनिश खोजी था, स्पेन का जो खोजी था जिसका नाम कोलंबस था, उन्होंने अपनी जल यात्रा शुरू कर दी इन सर्च ऑफ इंडिया। भारत की तलाश में, भारत से जो माल जाता था उसकी क्वालिटी, उसकी कंपैरिजन, वो सारी चीज़ों को वो बहुत ही क्या करते थे, अच्छा मानते थे। इस कारण से उसमें से नए रूट, ताकि वो भारत से डायरेक्टली सामान ले जा सकें, वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, अब इंडिया की तलाश शुरू कर दी। फाउंड द सी रूट बिटवीन यूरोप टू अमेरिका। अब हुआ ये कि वो लोग निकले थे इंडिया की तलाश में और उन्हें मिल गया अमेरिका। पोर्तुगीज डिस्कवर्ड वास्को डी गामा इन हिज लॉन्ग जर्नी थ्रू वाटर वेज फाउंड अ रूट फ्रॉम द साउदर्न एंड ऑफ द केप ऑफ द गुड होप द वेस्टर्न इंडिया एंड रीच्ड टू द पोर्ट ऑफ कलिकट इन केरला। और इसी क्रम में जो पुर्तगाली जो यात्री था वो पहुंचा, वो उसने इंडिया की खोज कर ली और वो पहुंचा सबसे पहले केरल। केरल में वो कलिकट पहुंचा था। कंपटीशन इन ट्रेड एंड मर्चेंडाइज। अब क्या हुआ, जो व्यापार था उसमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होने लगी। पुर्तगीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू दिस न्यू फाउंड। अब यहाँ पे क्या होने लगा, इंडिया में पुर्तगालीस और जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो आने लगे। लैंड फॉर ट्रेड इन 16th century, England, France and Holland came to rivalry. They also raised the waterways power and sent their sailors to encourage for the long sea voyage. Ultimately, trade rivalry started between European countries. अब इसमें हुआ क्या कि जो व्यापार में कंपटीशन हुआ उसके कारण से वो क्या करने लगे, अपने सेलर्स जो हैं वो भेजने लगे, मतलब समुद्र में अपनी अपनी ताकत जमाने लगे, समुद्र में अपना कब्जा करने लगे कि ये नहीं भाई ये मेरा रूट है, ये हमारे कंट्री का रूट है, इसमें आपकी कंट्री वाले नहीं ट्रेड कर सकते, आ जा नहीं सकते। इस प्रकार से उनके बीच में फिर क्या होने लगा, एक प्रकार से कंपटीशन शुरू हुआ और कंपटीशन जो था वो राइवल में बदल गया, झगड़े में बदल गया। और इसी कारण से इन देशों के बीच जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके बीच में होने लगा झगड़ा। राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अब उसी कारण से वहाँ पे व्यापार नीति का उदय हुआ, है ना। भाई झगड़ा करने से उनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था, तो उन्होंने क्या बनाया, एक कहना चाहिए पॉलिसी बनाई कि हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग व्यापार कैसे करेंगे। इसके लिए वहाँ पे फिर एक व्यापार नीति का उदय होता है। ड्यूरिंग द 17th century, foreign trade was the important elements of the economy and expansion in trade was the main aim of the rulers. अब यहाँ पे टाइम आता है 17th century का। ओके,
फॉरेन ट्रेड वॉज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और उस समय जो विदेश व्यापार था वो इकोनॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। इसलिए हर कंट्री चाहता था कि उसका व्यापार विदेशों में भी हो, बाहर के कंट्रीज़ में भी बढ़े। और यही उस समय उस ज़माने के शासकों का, रूलर्स जो होते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था। मेन पॉइंट ऑफ द पॉलिसी वर थ्रू ट्रेड टू मेक द नेशन एंड मोर प्रॉस्परस एंड मेक वीक द अदर नेशंस। उस समय ये जो व्यापार था वो इसका उद्देश्य ये था कि अपने देश को अच्छा धन संपन्न, मजबूत बनाना और दूसरे कंट्री को कमज़ोर कर देना। Rulers have given relaxation in taxes, so this economic policy is called tradeism. अब जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी रूलर्स थे, जो भी जो भी शासन था, वहाँ उन्होंने क्या किया, जो भारी भरकम टैक्स लगते थे उसमें छूट देना शुरू किया। क्योंकि हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश में तभी ज़्यादा व्यापार करेंगे जब हम उनको टैक्स में छूट देंगे। अगर हम ही लोग ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो दूसरे देश वो व्यापार करने नहीं जाएंगे, और दूसरे देश व्यापार करने नहीं जाएंगे तो हमारे जो देश का सामान है दूसरे देश में नहीं बिकेगा, तो ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, हम लोग जल्दी अमीर नहीं होंगे, है ना। दूसरे देश का पैसा आएगा तो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे हम लोग, हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स में रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया। यूरोपियन ट्रेडर्स स्क्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी विद द राइज इन ट्रेड। अब इस प्रकार से क्या होने लगे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपीय के जो व्यापारी थे, वो उन्हें टैक्स में छूट होने के कारण से वो और अधिक धनवान होने लगे और वो और भी ज़्यादा व्यापार में अपना पैसा लगाने लगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। Traders gained profit through the foreign trade, but there was the lots of problem in it. जो विदेश से व्यापार से जो पैसा आता था वो तो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी क्या होने लगी थी, प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स केम इन दिस, सो traders gave up work to craftsmen, started collecting raw materials and stocked them. Also they started doing the production. इन दिस वे ट्रेड कंपनी वॉज स्टार्टेड। अब हुआ क्या था, पहले क्या होता था कि जो गांव होते थे या फिर शहर होते थे, छोटे छोटे व्यापारी से लेकर क्या करते थे वो लोग, कोई मान के चलो टोकरी खरीदना है, एक व्यापारी को टोकरी के व्यापार में उसे 50 टोकरी चाहिए और एक आदमी 5 टोकरी बनाता है और 10 टोकरी वाले के पास जाता था। तो वो क्या करने लगे, और 10 टोकरी वाले के पास जाने से अच्छा है कि जो टोकरी बनाने का जो सामान है उसे वो खुद खरीद लेता था, 10 लोगों को काम पे लगा के वो खुद टोकरी बनवाता था। इस प्रकार से उनके क्या होने लगा, ट्रेड कंपनीज का जो शुरुआत होने लगी, जहाँ पे 10 से लोग फिर 50 बनने लगे, 60 बनने लगे। तो वहाँ पे होने क्या लगा कि इस प्रकार से एक कंपनी बनना शुरू हो गई जिसे कहते हैं ट्रेडिंग कंपनीज। Few traders started British Indian Company in London came to India in 17th century. This type of company also started in European countries like Holland and France. अब कुछ क्या किए, कुछ जो व्यापारी था उनके जो समूह थे या संघ, वो लोग आपस में मिलकर एक कंपनी बना दिए जिसे कहते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडियन कंपनी इन लंदन केम टू इंडिया। अब इस प्रकार से ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो भारत आई, अपनी कंपनी बना के 17th सेंचुरी में। दिस टाइप ऑफ कंपनी आल्सो स्टार्टेड इन यूरोप कंट्रीज़ लाइक हॉलैंड एंड फ्रांस। और इस प्रकार की जो अलग अलग कंपनियां थी, जो कई व्यापारी मिलकर एक बड़ी सी कंपनी बनाते थे, उसी प्रकार से हॉलैंड और फ्रांस में इन व्यापारिक कंपनियों का बनना, इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड इन यूरोप। अब जो यूरोप में व्यापार बढ़ने का जो परिणाम था वो क्या हुआ, ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग ट्रेड देयर वाज चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब जो व्यापार बढ़ा यूरोप में, जो एक प्रकार से व्यापार में जो एक प्रकार से तेज़ी आई कि हर कोई आदमी व्यापार करने लगा, एक जगह का सामान वहाँ जाने लगा, वहाँ का सामान यहाँ आने लगा। तो इस प्रकार से जो फास्ट चेंजेस होने लगा वो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने लगा, हमारी सोसाइटी को चेंज करने लगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने लगा, हमारी पॉलिटिकल वेज थे जो भी, उन सबको चेंज करने लगा।
इकोनॉमिक इफेक्ट, अब पहले देखते हैं इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है। इन यूरोप इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रेड trade and industry flourished in the medieval period. Gold and silver became the economic transaction. Now new trade centers came up, such as in London and Bristol. There was increase in the number of the banks to provide capital for trade. So capital was utilized for the investment in trade. New industry began to flourish, such as making sheep. Due to the increase in trade and industry, the margin of profit increased. As a result, the European nations began to prosper. हुआ क्या, इनका जो इकोनॉमी था वो क्या क्या प्रभाव पड़ने लगा। अब उस समय होने क्या लगा, सोने और चांदी के जो भी व्यापार थे या फिर पीरियड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में सोने और चांदी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होने लगा। कहने का मतलब है कि पहले ज़माने में क्या होता था, अगर मैं 5 किलो मुझे धान चाहिए तो मैं गेहूँ देता हूँ और गेहूँ के बदले मुझे धान मिल जाता है, चावल मिल जाता है, ऐसा उस समय का था, सामान के बदले सामान। लेकिन अब सामान के बदले सामान ना होकर उसको किस में चेंज कर दिए, मेटल्स में, एक प्रकार का सोने और चांदी में उसको परिवर्तित किया गया कि मैं इतना चांदी दूंगा, इतना सोना दूंगा तो आप मुझे ये सामान दोगे। मतलब उसका एक फिर वहाँ पे रेट डिसाइड होने लगा, उसका कीमत शुरू हुआ। और इसी कारण से लंदन और ब्रिस्टल में एक नया ट्रेड सेंटर बन गया। जो लंदन था वो भी व्यापार का केंद्र बन गया, ब्रिस्टल था वो भी व्यापार का केंद्र बन गया। देयर वाज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैंक्स, और इस प्रकार से उस प्रकार वहाँ पे कई प्रकार की बैंकों की भी शुरुआत हुई जो उन जो ट्रेडिंग कंपनीज थे उनको क्या देती थी, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, जिसके कारण से वो अपने व्यापार को और अधिक बढ़ा सकते थे। और इस प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो अमीर होने लगी, और अलग अलग प्रकार की कंट्रीज जैसे जहाज़ बनाने की और भी बनाने की जो कंट्री जो भी ट्रेडिशन कंपनीज थी वो बढ़ने लगी और उनका मार्जिन बढ़ने लगा, ठीक है। अगर तो इस प्रकार से वहाँ पे फिर वहाँ के जो देश थे वो अमीर होने लगे। सोशल इफेक्ट, अब उसका समाज पे क्या प्रभाव है। ड्यू टू इंक्रीज इन द ट्रेड मैनी occupations related to it came into existence, such as banker, broker, clerk and accountant. We call these classes middle class people. Skilled workers and producers also came under this class. अब बैंक, व्यापार, इन सारी चीज़ों के बढ़ने के कारण से हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की चेंजेस दिखाई दिए। जैसे एक नए क्लास का उदय हुआ जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। उनमें कौन कौन से लोग होते थे, उनमें जैसे बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क, अकाउंटेंट, इस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे वो हुआ करते थे, जिससे मिडिल क्लास का जन्म हुआ। स्किल्ड वर्कर एंड प्रोड्यूसर आल्सो केम अंडर दिस क्लास। अब इसमें क्या होता है, जो भी स्किल्ड वर्कर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं वो भी इस क्लास में आते हैं। पहले ज़माने में या तो गरीब होता था या तो अमीर होता था, मिडिल क्लास का तो नाम ही नहीं था। तो इस बीच में क्या होने लगा, इस प्रकार के जो लोग जो व्यापार से संबंधित होते थे उनको सैलरी दी जाती थी, उनका एक निश्चित मतलब पैसा फिक्स होता था। उससे क्या हुआ, एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। दिस टाइप ऑफ क्लास इज नॉट टाइड विद द बॉन्डेज ऑफ सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन। अब इस प्रकार की जो क्लास होती है, जो मिडिल क्लास होती है, अंधविश्वास में या फिर किसी भी प्रकार के ट्रेडिशन में, व्यापार में उनका कोई बंधन नहीं होता है। दिस पीपल आर ईगर टू नो न्यू थिंग्स। इस प्रकार के लोग नई नई चीज़ों के लिए जानने के लिए उत्साहित। इन दिस वे मिडिल क्लास बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और इस प्रकार से जो मिडिल क्लास था वो हमारे जो आधुनिक समाज का क्या बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गया, बैकबोन बन गया। अब देखते हैं इस पर इसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होता है। Rise in trade also affected the political areas in Europe. Trades for their own
Interests supported in government rulers also relied the traders by ranking them according to the prosperity of the nation. With this, business class got importance and respect in the country. With the rise of trade in Europe, decline in feudalism took place and new system was established known as the modern society. So political effect means the जो भी रूल्स राजा वगैरह थे, ये जो व्यापारी थे, इनको सम्मान देने लगे, इनको मान सम्मान देने लगे, इनका सोसाइटी में ज़्यादा मान सम्मान होने लगा। इस प्रकार से इनको पॉलिटिकल जो है इनका वर्चस्व बढ़ गया, जो भी राजनीतिक वर्चस्व था ये इनका बढ़ने लगा इन व्यापारियों का, और वो लोग पॉलिटिक्स में आकर जो रूल्स था, जो किंग वगैरह था, उनके साथ उनका भी क्या होने लगा, महत्व बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या होने लगा, पॉलिटिक्स में जो पहले पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, उनकी फैमिली ही इन्वॉल्व हुआ करती थी, व्यापारी अपना सिर्फ व्यापार करते थे। अब ऐसा होने लगा, व्यापारी अब पॉलिटिक्स में भी जाने लगे और वो उस स्टेट का, उस देश का, उस कंट्री का पॉलिटिकल पार्ट भी बनने लगे। which gave birth to third group and large number of labor society including the rich and middle class। अब इस प्रकार से जो एक प्रकार से व्यापारिक जो रिवॉल्यूशन आया वहाँ पे यूरोप में, उसमें हुआ क्या कि एक थर्ड ग्रुप, एक तीसरे ग्रुप का जन्म हुआ, जो भी गरीब लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या बनने लगे, फिर लार्ज नंबर ऑफ लेबर सोसाइटी। अब क्या है, बड़े बड़े व्यापार को चलाने के लिए, बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनीज को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से जो लार्ज अमाउंट में था, हमें लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। Including rich and middle class, rich people were the owner of the factories and industries, and they used raw materials for the production of goods। अब इस यहाँ पे हुआ क्या करता कि गरीब से लेकर अमीर हर कोई इंसान अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग चल रही थी उसमें इन्वॉल्व होने लगा। जो गरीब होता था वो वहाँ का लेबर बन जाता था, जो अमीर होता था वो उसका मालिक बन जाता था, मालिक होते थे। इस प्रकार से जो मालिक होते थे वो रॉ मटेरियल्स लाते थे और रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन नई चीज़ें बनाकर फिर मार्केट में मिडिल क्लास के लिए उन्हें अवेलेबल कराते थे। देयर मेन एम वॉज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ गुड, और उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना, फ़ायदा कमाना। The main control was in their hands. Worker used to work under their ownership and used to draw salary। अब ये क्या होता था, जो मालिक होता था वो व्यापार से पैसे कमाता था, पैसे कमाने, और जो उनके अंडर में जो फैक्ट्री में, उनके ट्रेडिंग कंपनी में जो भी लेबर होते थे वो क्या करते थे, सैलरी लेते थे, अपना पैसा लेते थे, कि निश्चित लिमिटेड अमाउंट लेते थे, उनका जो भी सैलरी था, और वो काम करते थे। और जो मालिक होता था वो, उसका काम होता था व्यापार में फ़ायदा लेना। न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन वर एडॉप्टेड सो दैट द प्रोडक्शन में इंक्रीज रैपिडली। Earlier, craftsmen used to work with these traditional tools in his home with the help of his family. The essential raw materials they used to get from the traders, but this system of household production was very slow and it cannot fulfill the ever increasing market demands। अब होता क्या था, पूरा पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, घर में ही अपना सामान बनाते थे और उसे व्यापारी खरीद के मार्केट में सेल आउट करते थे। और वो उसमें क्या होता क्या था कि वो अपने ट्रेडिशनल जो भी है उनका टूल्स था सामान बनाने का, जो भी कर्मकार थे, क्राफ्टमैन थे, है ना, जो भी काम करने वाले थे, सब टोकरी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, जो भी लोग हुआ करते थे,
ठीक है। तो वो अपने घर में बनाते थे अपनी फैमिली के साथ, और उसको व्यापारी खरीद के मार्केट में दूसरी जगह ले जाके बेचता था। अब ये क्या करने लगे कि अब इसमें होता क्या था कि प्रोडक्शन धीरे होता था और जो मार्केट की डिमांड थी वो भी पूरी नहीं होती थी। ठीक है। बट दिस सिस्टम ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्शन वॉज वेरी स्लो एंड इट कैन नॉट फुलफिल एवर इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड। इन 18th century द न्यू सिस्टम वॉज industrialism brought to revolution in production as the owner of the factory used to buy raw materials and employ workers in the production with the help of new मशीनरीज एंड देन सोल्ड देम इन द मार्केट। अब उसमें क्या होने लगा कि जो मालिक होते थे, व्यापारी होते थे, उन्होंने नए नए मशीनरीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया, और जो क्राफ्टमैन थे उन्होंने उन पे लेबर के रूप में अपने यहाँ काम देकर उनका जो लेबर था वो परचेस कर लिया, और नई नई मार्केट की डिमांड के हिसाब से फिर चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और पुराने ट्रेडिशनल वे को छोड़कर नए मशीनरीज़ के साथ जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी नई मशीन आती थी उस मशीन के हिसाब से फिर प्रोडक्शन शुरू कर दिए। नाउ वर्कर्स डज नॉट डू प्रोडक्शन इन देयर हाउस बट यूज्ड टू वर्क इन सैलरी इन फैक्ट्रीज। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एंड मशीन वर आल्सो यूज्ड। अब क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे वो अब घर में ना काम करके एक फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री में काम करते थे, जहाँ पे नए नए मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब नए काम के हिसाब से अपने काम को इजी करने के लिए लोग क्या करते हैं, नए टूल्स, नए हथियार, नए मशीन का आविष्कार करते हैं। There are new types of spinning wheels, sewing machine, engine working on steam energy were introduced। और इसी कारण से फिर नए नए मशीन जैसे स्पिनिंग मशीन हुआ, स्पिनिंग व्हील्स हुआ, चक्री हुआ, सीविंग मशीन हुआ, सिलाई के मशीन आने लगे, इंजन वर्किंग विथ स्टीम एनर्जी के साथ जो इंजन काम करने वाले थे वो आने लगे। तो इस प्रकार से नई नई चीज़ों का आविष्कार शुरू हो गया। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इंक्रीज्ड रैपिडली, स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स स्ट्रेंथ इन रिप्लेसिंग द मशीन। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग गाड़ी चलाने के लिए बैल वगैरह का यूज़ करते थे या फिर ह्यूमन एफर्ट लगाते थे। अब क्या होने लगा, मशीन का आविष्कार और नई चीज़ों के आविष्कार होने के कारण से लोग मशीनों को या फिर कहना चाहिए उन एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया मशीनों ने। ठीक है। और ह्यूमन एफर्ट को से ज़्यादा वो काम करने लगा। पावर स्टीम एनर्जी हेल्प द इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ शिप्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। अब क्या हुआ, जैसे मशीन का आविष्कार हुआ तो इंजन का आविष्कार हुआ तो मशीन ह्यूमन से ज़्यादा स्पीड से काम करता है, या फिर कहने का मतलब अगर किसी कोई अगर आदमी होगा तो वो जितनी स्पीड से नाव को खींच सकता है उससे ज़्यादा स्पीड से क्या है, मशीन नाव को चला सकती है। तो इस प्रकार से जो सीप वगैरह थे उनकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई। स्पीड होने के कारण से जो व्यापार था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। In the past of 18th century, industrial revolution was established in England, which spread in other countries of Europe। और इस प्रकार से 18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, जो फिर पूरे इंग्लैंड से लेकर पूरे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में भी बनने लगी। In future use electricity and blast furnace has helped to cast iron। So इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से यूरोप में कहना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Dear students, I don't think that we need to go for the next video
because it is too short. We don't need to go for a long class. Establishment of colonialism. Establishment of colonialism. Colonialism का मतलब है उपनिवेशवाद. European people first of all landed over the prosperous state of the American continent and established colonialism. Spain established its region in southern and Central America. England established its colony in North America and coastal areas of Atlantic Ocean. Dutch in Southeast Asia and Indonesia. Portuguese first came to India and later on British. Dutch and France also spread their colonies. Europeans established their colonies later in Africa and Australia. The need of raw materials for the production they restricted heavily to colonies. They used their raw materials for their production and sold the goods in those countries at a very high rate. In this way, they exploited the local people of those countries and gave them economic burden. कहने का मतलब ये है कि यूरोप ने जो उपनिवेशवाद, जो यूरोप के कंट्री ने जो उपनिवेशवाद का जो सिद्धांत अपनाया, उसके कारण से वो लोग क्या करने लगे, अब दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे. अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार के लिए कच्चे माल की आवश्यकता के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे. जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो अमेरिका था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, यहाँ पे एक ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज़ जो है अपना अपना कॉलोनी बनाने लगे. कहने का मतलब है एक व्यापार का केंद्र बनाने लगे और उस व्यापार के केंद्र में फिर वो लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लाते थे, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करते थे. प्रोडक्शन करने के बाद फिर उन ऐसे कंट्रीज़ में ऐसे किंग एंड क्वींस को सेल आउट करते थे या फिर लोगों को सेल आउट करते थे बहुत ही हाई रेट पे, जिसके कारण से वहाँ के जो लोकल, जिस कंट्री में लोग जाते थे व्यापार करने, वहाँ की जो लोकल पीपल होती थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता था और उनका शोषण होने लगता था. जैसे हम लोग अपने इंडिया का ही ले लेते हैं. अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश के जो राजा रानी थे, उनका जो सामान था, वो अंग्रेज को से जो सामान खरीदते थे उसके कारण से उनके बीच में डील होती थी. कोई किसी के स्टेट ले लेता था, कोई किसी का, और कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रोमिसेस करा लेते थे, जिसके कारण से उनका पूरा जो स्टेट था वो एक्सप्लॉइट होने लगा और उनके जो भी राइट्स हुआ करते थे वो भी कम होने लगे. और इस प्रकार से वो उनके पूरे स्टेट को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट कर लेते थे, शोषित कर लेते थे. The establishment and the extension of colonies is known as colonialism. और इस प्रकार से जो व्यापारिक कॉलोनियाँ बनी गई, जिस व्यापारिक कॉलोनियों को मतलब है किसी देश में जाना और उसी देश के कच्चे माल का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके उसी देश के लोगों को उसे ज़्यादा कीमत में बेचना ही कॉलोनियलिज्म है. ठीक है. As a result of colonialism in European countries, increasing trade leads to more interest in earning. Colonialism has two great consequences. अब इसके परिणाम स्वरूप, ये जो कॉलोनियलिज्म है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो था, इंक्रीजिंग ट्रेड लीड्स इन मोर इंटरेस्ट इन अर्निंग. कॉलोनियलिज्म हैज़ टू ग्रेट कॉन्सिक्वेंस. इस प्रकार से दो चीज़ें हुई उनके साथ, एक तो ज़्यादा में माल बेचना और दूसरी चीज़ें. तो वो क्या क्या चीज़ें पहला देखते हैं. फर्स्ट, हायर एस्पिरेशन टू स्नैच द कॉलोनीज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज विच वॉज रीज़न फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और ये जो देश थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इनके बीच में जो कॉलोनियाँ बनी थी, जो व्यापारिक केंद्र बने हुए थे, उनमें जो एक दूसरे का वर्चस्व था. कहने का मतलब है जो
एक प्रकार की होड़ लग गई थी ज़्यादा मुनाफा कमाने का, ज़्यादा पैसा कमाने का, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। दूसरा, टू रिमेन देमसेल्फ पावरफुल एंड यूज ओवर colonies, the European powers forced the common people to remain uneducated and backward, so that the colonies countries' resources can be exploited at a vast rate, and common people there were thrown in the darkness of illiteracy and backwardness। और इसके पीछे एक दूसरा इसके दूसरा प्रभाव था कि जो वहाँ के कॉलोनीज़ में जो लोग होते थे, जो लेबर होते थे, जिनका रिसोर्स यूज़ किया जाता था, जिनका रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था, उन लोगों को इलिटरेट रखा गया, उन लोगों को पिछड़ा हुआ रखा गया, ताकि वे उनके लिए रिसोर्स उनका शोषण कर सकें और इस प्रकार से उनको एक अंधेरे में धकेल दिया गया। Okay students, in the next video I will come with the exercise. Okay, see you next time. Bye bye. Before going to the exercise, you must read this lesson very carefully, and you have to understand, and you have to prepare the point notes. Okay, and then we'll go for the exercise. Okay, see you soon later.